Assalamu alaikum. Today topic is the bacterial genetics. We are going to tell you about the genetics of the bacteria. So our objectives of today will be that we will be telling you how a genetics transfer occur in the bacteria, how different mutations occur, and what is recombination and growth cycle. You see, the concept is that DNA replicates. It replicates in a very complex manner. There are many steps recognized in it, and we should be aware that there are few steps which are must. It means that it is always unidirectional, always from a donor to the recipient. Donor does not give the entire chromosome. ठीक है जब वो entire नहीं देता तो मीरोजाइगोट्स बनते हैं. Then gene transfer can occur between the species. These are the basic rules. Eukaryotes जैसे हम humans हैं उसमें we know that the eukaryotes are the biggest one. We should know the difference between the prokaryotes, which are bacteria, and the humans eukaryotes. What is the difference between the genetic material? In eukaryotes, it is always enclosed in a DNA. DNA is enclosed in a membrane and nucleus. And eukaryotes have the processes of meiosis to reduce it to a diploid. First, a diploid gets into a haploid. Then from each parents, we get one haploid and fertilization occurs. And then again, we form, ultimately, again, a diploid is formed. Eukaryotes are often diploid and have a linear chromosomes and is usually more than one. In eukaryotes, transformation of the genes in RNA occurs in the nucleus, and translation of that RNA into a proteins occurs in the cytoplasm. The two processes are separated from each other. These are the fixed rules of eukaryotes. While in prokaryotes, the biggest example is the bacteria, is of sexual process and transferring is not regular. They can have the same aim, but here remember that prokaryotes are haploid. They contain a single circular chromosome. So if they ask you what is the difference of a chromosome in the humans and in the bacteria, so the first difference is that humans or eukaryotes are diploid while prokaryotes are haploid. Eukaryotes have a linear, straight X type of a chromosome, while in the bacteria or the prokaryotes, it is a single circular. Now, there is a term, a plasmid. The bacteria have got another small plasmids. They are also circular DNA molecule, or only circular DNA is can replicate. Prokaryotes के अंदर क्या होता है कि translation is coupled to the transcription. Translation of the new RNA molecule starts before the transcription is finished. Now, the genetic materials in the bacteria are transferred. There is a transformation, and always from one bacteria to the other is a recipient, and it brings about a change. The discovery became a keystone of the molecular biology and modern genetics. जब bacteria की genetics को पढ़ा तो it became very clear, and now it's used in the molecular biology. Now, the number of the prokaryotes have been found to be naturally transferable. They can go from one species to the other of both the gram-negative and O-positive bacteria and some species of the archaeas. Now, why the genetics is important? To see with the advancement of genetics, especially the prokaryotes, we have utilized this study in the industries like making the antibiotics, increasing the yield and improvement of the manufacturing process. The characteristic example है कि this genetic engineering has been used in fields of agriculture, right? Secondly, the use is understanding the genetics or the cause of the disease, which is caused by the microorganism.
In prokaryotes, gene transferred from one organism to the other can occur. It can also occur from one species to the other. When we'll be explaining you individual bacteria, this will be very clear. Now the bacteria have a property that beside, because you know that the chromosome is or the DNAs are not membrane bound. So they have got an extra chromosomal genetic material, and this is present as a essential for the survival of the bacteria. This makes the bacteria resistant to the antibiotics, and they are able to produce more toxins. जो extra chromosomal genetic material बाहर पड़ा होता है in the cytoplasm lose. This is helpful in the resisting of the giving a survival to the bacteria, and they can resist the antibiotics. Now, question arises the term plasmids. You should remember, देखो ये bacteria का जो आप right side पे देख रहे हो बड़ा सा circular structure है. This is a main bacterial chromosome. Now, beside this, आपको एक छोटा सा right side के ऊपर labeled plasmid नजर आ रहा है. Now, what are plasmids? Plasmids are the circular DNA molecule present in the cytoplasm of the bacteria. They are extra chromosomal. यानी कि जो मेन क्रोमोसोम से बाहर छोटे छोटे से सर्कुलर चीजें पड़ी हुई हैं, हम उनको कहेंगे प्लाज्मिड्स. और ये क्या करते हैं? इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, दे कैन गो ऑन रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स विदाउट एनी प्रोसेसेस, कैन ट्रांसफर द जीन फ्रॉम वन सेल टू द अदर. The third very important is they act as a vectors. Vectors are the medias or the things which carry the genes. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक प्लाज्मिड निकालते हैं. फॉर एग्जांपल इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकालेंगे, इसको आर्टिफिशियली वी विल मेक अनदर प्लाज्मिड विद न्यू प्रॉपर्टीज. और ये ज्यादा हमारी जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है उसमें यूज हो रहा है. ठीक है. Now, important thing is you should remember the plasmid functions. आपको plasmid की definition आनी चाहिए. Then you should know what are the its functions. So, first is the resistance to the antibiotics. Then bacteriocins production. When we will be studying individual bacteria which have got these property, you will know. Certain bacteria produces enterotoxins. They enhances the pathogenicity. So these 6 functions you should remember. Now see, this is the plasmid giving you more clear how main bacteria DNA red color में main है, और उसके जो parts fractionize होके cytoplasm में पड़े हुए वो कहला रहे हैं plasmids, and these plasmids can replicate on their own. अब ये कहाँ कहाँ हम करते हैं, इनके साथ हमें याद रखना है कि episomes term है. These are the terms. Episomes are integrated form of the plasmid with DNA. Last slide में आप देखो, जो last slide है, you can see that the blue portion has come into the main bacteria का DNA. Red और blue color आप appreciate कर सकते हो. ये जो portion है last slide का, जो ये bacteria के अंदर दिखाया गया है below, is showing you episomes. Episomes जो उनसे होते हैं, they can transfer. अब ये दो टाइप के होते हैं plasmids. One are self transferable और second है non transferable. So if they ask you can name the types, so the self transferable and non transferable. Transferable जो होते हैं वो transfer करते हैं sex और drug resistance with the help of the restriction nuclease. ये enzyme है restriction and nuclease, जिसकी help से वो आगे transfer करते हैं. Now mutations पे आते हैं. म्यूटेशन की टर्म आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए. इट इज अ इनहेरिटेड चेंज इन द बेसिस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स. आपको पता है कि एवरी न्यूक्लिक एसिड हैज गॉट 4 फिक्स्ड बेसिस कॉल्ड ए. वी नॉमिनेट देम बाय ए, टी, यू, सी. डीएनए में जब होता है तो उसको सी और जी कह देते हैं. आरएनए की जो बेसिस है उसमें वो सी इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल यू. ठीक है. तो जो म्यूटेशन है ये इनहेरिटेड चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं और यूजुअली ब्रिंग्स अबाउट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ जेनेटिक चेंज. म्यूटेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द म्यूटेशन अकर. म्यूटेशंस में क्या होते हैं,
All genes are susceptible for mutation, but all mutations are not expressed. यानी कि जो change आया होता है वो sometimes it's not seen. बस basis में changes आ गए, लेकिन pathologically या phenotyping में वो कोई problem नहीं कर रहे हैं. Lethal mutations are, by the name you can make out, it is a mutation which is harmful and destroy the vital functions of that organism. Mutant, ये बहुत करीब के नाम है, मगर these are the definitions जो आपको याद करनी है कि mutation क्या होता है, mutant क्या होते हैं, mutagen क्या होते हैं. ओके, तो जो mutants हैं for organisms whose genome carries a mutation. Depending on the mutation, the mutant may be or may not show a phenotypic forms. Means वही जो मैंने आपको बताया कि 4 basis में अगर कोई changes आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बाद में बताएंगे आपको, लेकिन जेनेटिक्स से पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा. इसी तरह से द म्यूटेजेंस और म्यूटोजेनिक एजेंट्स, दीज आर द जो एलिमेंट्स हैं या वैरायटी ऑफ द थिंग्स हैं जो कॉज करती हैं म्यूटेशन. इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं केमिकल चेंज, सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन फिजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल एजेंट्स. दे कैन इंक्रीज द म्यूटेशन रेट एंड दे आर कॉल्ड, वी कैन यूज देम एज अ इंड्यूशन, और ये रेफर टू एज अ म्यूटेजन. सो म्यूटेजेंस आर द एजेंट्स which causes mutation. इसके एग्जांपल्स हैं UV ultraviolet rays, alkylating agents और acidic dyes. अब म्यूटेशन जो होती है उसका रूल है, इट इज ऑलवेज रैंडम, यूनिडायरेक्शनल होती है और हेरिटेबल वेरिएशन होती है. हेरिटेबल वेरिएशन मींस यू इनहेरिट, यू आर बोर्न विद इट, इसमें हेरिडिटी में चल रहा होता है. और इसमें कॉज क्या होती है, ऑल्टरेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. There are different types of the mutations. उनको हमने नेम किया हुआ है as a addition, deletion, substitution. It can be of one base or it can be more than one base. तो ये जब एग्जाम्पल्स कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा. Now causes of the mutation. Agents हमें पता चल गए. Now there are fixed causes. एक कहलाती है spontaneous mutation. It occurs in the absence of a mutation causing agents. खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके लिए कोई उसको एजेंट नहीं चलेगा. और ये यूजली ओकेशनल मिस्टेक्स ऑन द डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है खुद ब खुद कोई ना कोई बेस इधर से उधर हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. इंड्यूस म्यूटेशन तब बोलेंगे जब आपने खुद एजेंट्स सच एज केमिकल्स, रेडिएशन डाला, आपने वहां की बेसिस को चेंज किया, तो such type of the mutation is called induced mutation. What is the importance of mutations in medicine? अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो they can mutate to form more virulent form, more potent toxins, slime capsules. ठीक है, तो बैक्टीरिया अपने म्यूटेशन तब करते हैं जब उनको बहुत विरुलेंट बनना होता है. विरुलेंट का मतलब होता है when they become more dangerous, they become more harmful. इसी तरह से वो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो और टॉक्सिन्स बनाने के लिए अपने आप को म्यूटेट करते हैं. इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने रियल लाइफ में सुना होगा कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई थी, एंटीबायोटिक स्टार्ट की गई और वो द पर्सन हैज बिकम रेसिस्टेंट टू दैट. तो उसमें क्या होता है कि ये हमारी म्यूटेशन की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, उससे वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट वो काम करना छोड़ देते हैं, बिकॉज दे हैव म्यूटेटेड, उन्होंने अपनी वो कॉम्पोजिशन चेंज कर ली और अब वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी. ठीक है, ये उसके बेनिफिशियल हो गया फॉर द बैक्टीरिया. इसी तरह से जो पेशेंट जो बैक्टीरिया है वो विरुलेंस, जब उसमें और डेंजरस बनना है, मोर हार्मफुल बनना है, तब वो अपने आप को म्यूटेट करेगा, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स हो जाएगा. अब म्यूटेशन कैन अकर इन एनी सीक्वेंस, इनएविटेबल, यूजफुल फॉर सर्वाइवल. ओके, genetic recombination क्या है? It is a process by which genetic elements contained in two separate genomes are brought together in one unit. इसका एग्जाम्पल ये कि फर्ज करो
हम ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। एक प्लांट है, उसके ऊपर रेड रंग के, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टोमेटो लग रहे हैं, उनका बहुत अच्छा रेड कलर है। एक और प्लांट है जिसपे टोमेटोज लग रहे हैं, जिनके अंदर बहुत जूस है और वो बहुत स्वीट है, उनका साइज बड़ा है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक के डिफरेंट प्लांट्स हैं। जब आप इनकी जीन्स को आपस में मिला के थर्ड टाइप निकालोगे जो इन दोनों की रिकम्बिनेशन से बनेगी, तो उसमें क्या होगा, द रिजल्ट विल बी दैट द फ्रूट विल, दैट टोमेटो विल बी वेरी रेड, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी जूसी, दोनों के करेक्टरिस्टिक उसमें मिल जाएंगे। और इसको कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ओके। इसमें क्या होता है कि ये हमारे, हम न्यू फंक्शंस के लिए, अडेप्टेशंस के लिए, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आ रही हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन ह्यूमंस के अंदर जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें भी अकर करते हैं। वो जब हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में कराएंगे, बट एट दिस स्टेज बी फेमिलियर विद द टर्म genetic recombination and where it is used. ठीक है, here usually involve much larger changes. हम पूरा इंटायर जीन्स को चेंज कर सकते हैं, हम सेट ऑफ जीन्स को चेंज कर सकते हैं, पूरे क्रोमोसोम को कर सकते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाते हैं। ये ह्यूमंस पे पॉसिबल नेचुरली होते हैं, आर्टिफिशियली अभी तक नहीं कर सकते हैं रिकम्बिनेशन जीन्स की। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर पेरेंट्स की जो जीन रिकम्बिनेशन होती है, वो समटाइम्स इट इज हेल्पफुल, समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिजल्ट्स इन सम डिजीजेस। जब जेनेटिक्स डिटेल में करेंगे तब आप होगा। एज फार एज बैक्टीरियाज आर कंसर्न, हम ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम एंटीबायोटिक्स को और डिजीजेस को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। Now, the question arises that how these genes are transferred between the bacteria. ठीक है? You know, the mating results in the higher animals. In bacteria, there is no proper sex determination कि जी ये male है, ये female है. They don't have a proper mating process. मगर they transfer the mature genetic material from one bacteria to the other by the three ways. तो एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ बैक्टीरिया ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल, या नेम द सेक्सुअल प्रोसेसेस occurring in the bacteria. So remember these three names. One is transformation, number two is transduction, third is conjugation. These are the three methods. इनका फिक्स मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अ नेकेड डीएनए फ्रेगमेंट, or a naked DNA is taken up from the environment to by the bacterial cell. वो लेगा जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफॉर्म कर देगा अपने आप को। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, हैव द कॉन्सेप्ट कि यहाँ कोई एक्चुअल सेक्सुअल प्रोसेस नहीं अकर कर रहा है, या तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, दूसरा जो है वो है ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर, और इसमें, या फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली बैक्टीरिया इन्फेक्ट द वायरसेस, और उसके लिए हम वर्ड यूज बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस या बैक्टीरियोफेजेस। Now, what are bacteriophages? These are the viruses which are infected by the bacteria. Now, होता क्या है कि वो उस वायरस में बैक्टीरिया जो होते हैं अपना डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं, और थोड़ा सा शायद वायरस का भी बैक्टीरिया उठा ले, वो जीन्स उठा रहा हो। तो दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ द डीएनए और द जीन्स बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस। अब वो जो ट्रांसफर किया होता है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है इनटू द होस्ट सेल्स। Third process called conjugation. It is somehow like a sexual process. इसमें क्या होता है? There is a direct transfer between the two bacteria, which are temporarily in contact with each other. तो इसमें थोड़ा सा उनको physically bacteria को contact में आना पड़ता है, और they transfer from one bacteria to the other. Look at the diagrams. देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप उसमें देख सक रहे हो कि डोनर का छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बने इन द सेंटर, एंड दे गॉट इनकॉर्पोरेटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द अदर बैक्टीरिया, वो उधर चले गए। ट्रांसडक्शन में क्या हुआ कि ये डोनर था बैक्टीरिया, उसके अंदर ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, मॉस्किटो लाइक थिंग और वॉट एवर शेप यू वांट टू से,
This is a bacteriophage. This is a virus which has been infected by this bacteria on the left side. Now, this bacteriophage is getting attached to the other bacteria और उधर से वो आप नीचे से देखिए छोटा सा एक green curve टाइप की चीज बाहर निकल रही है. This is a genetic material. Now, after injection, it will get incorporated or you will get attached to this donor से निकल के recipient में. While in conjugation, you can appreciate that there are two bacteria, or on the right side, you can see that a pilus is formed. It is named as the F pilus. ये F pilus उधर से part transfer होके ये दोनों करीब आए और उसने अपना उसके अंदर transfer कर दिया recipient के अंदर. So this process is called conjugation. So transformation, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए what is a transformation? So you will say that this is a process by which gene transfer results from the uptake of a DNA from the donor to the recipient. This is जो हम करते हैं ना genetic recombination, वो हम transformation में की टर्मिनोलॉजी कह लो या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से करते हैं. इसमें वी कैन मैनिपुलेट देम इन द टेस्ट ट्यूब्स. हमने फर्स्ट करो डोनर का डीएनए निकाला. इट वाज कंपोज्ड ऑफ 20 बेसिस. उसमें से हमने सिलेक्ट कर ली 5-6 बेसिस और उनको हमने एक लिविंग सेल में डाल दिया और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियस बात है कि डीएनए का कितना बड़ा साइज था, वो कितना हेल्दी था, उतना कितना कॉम्पिटेंट था, ये फैक्टर्स हैं जो उसके सक्सेसफुल में काम करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच डीएनए इज फ्रेगमेंटेड फ्रॉम अ डेड डिग्रेडेड बैक्टीरियम और ये एंटर करता है उस रेसिपिएंट में जो कि ठीक होता है और एक्सचेंज करता है. इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स 4 स्टेप्स. फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि फ्री डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है इनटू द रेसिपिएंट सेल्स एंड ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक चेंजेस. ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ये यूजुअली हमने एक्सपेरिमेंटल डोमेजेस में किया था और जब हमने जीन्स को स्टडी करना शुरू किया था और ट्रांसफर करना शुरू किया था, जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीशीज और फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू द अदर, तब यूज करते थे. The discovery became the keystone of molecular biology and modern genetics. इस ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करके जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने किया और जो हमारे प्रोकैरियोट्स थे नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन स्पीशीज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव और सम स्पाइरोकीट्स कैन अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन. These are the 4 steps of transformation. आप इस डायग्राम को अगर अच्छी तरह से देखें तो आप देखें कि एक सेल है ऑन द लेफ्ट साइड इन फर्स्ट स्लाइड. उसके जो डीएनए था वो फ्रेगमेंटेड हो गया, छोटे छोटे पोर्शंस में कट गया. कटने के बाद उसमें से एक या दो जो थे वो फ्रेगमेंटेड फ्रॉम द डेड बैक्टीरियम दे आर गोइंग टू द लिविंग कंपोनेंट. वो लिविंग बैक्टीरिया में गए, उसने सेल वॉल के साथ प्रोटीन के साथ बाइंडिंग की और एंटर हो गया. एंटर होने के बाद इन द थर्ड इसमें हमारी रेक ए प्रोटीन्स होती हैं. रिमेंबर द नेम, रेक ए प्रोटीन्स आर द प्रोमोटर्स. दे अलाउ यू, जहां जहां ये होती हैं वहां ये जाके एक तरह के देख रहे हो आप, रेक ए को सर्कल से दिखाया गया हुआ है. रिसिपिएंट का जो जीनोम है वो ब्लू कलर से है, जो डोनर से आया है या डेड बैक्टीरिया से आया है दैट इज इन पर्पल कलर. जब जहां जहां वो रैक एक ही साइट होगी वो जाके वहां से उसको एक तरह से डोर की तरह से एक्ट करेगी, उसको अलाउ कर देगी कि यहाँ तुम मेरे साथ इनकॉर्पोरेट कर जाओ, ज्वाइन कर जाओ एंड दे विल बी एक्सचेंज इनकम्प्लीट. अब ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कंप्लीटेड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. यू स्टडी दिस इन डिटेल. ट्रांसडक्शन जो उनसी होती है वो ट्रांसफर मैंने जैसे बताया थ्रू द, remember transduction is always through the bacteriophage. Bacteriophages are the bacteria which infect the viruses or these are the viruses which are infected by the bacteria. अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल पीसेस ऑफ द डीएनए जो होते हैं वो अपने प्रोटीन कोड के साथ मिलके जाके वायरसेस के अंदर छुप जाते हैं. It can be of two forms, generalized or specialized.
Generalized term will be used when any piece of the bacterial genome can be transformed. Randomly कोई सभी पोर्शन उसका जो है वो चला जाएगा. स्पेशलाइज में क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक पीस को उठाएगा, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम का उठाकर ट्रांसफर करेगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शंस. प्लीज रिमेंबर द टर्म बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज. एग्जाम में पूछे व्हाट आर बैक्टीरियोफेज, तो ये डेफिनेशन बोलनी है. दे आर obligate intracellular parasites that multiply inside the bacteria. They use some of its biosynthetic machinery, and then they infect the viruses. So when viruses get infected by the bacteria, they are called bacteriophage. हम बैक्टीरियोफाज का इस तरह से जब भी डायग्राम्स में बनाते हैं तो इस तरह से बना देते हैं. इसकी जो कंपोजिशन, यू डोंट हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ इट, बट यू शुड रिमेंबर कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. इसके स्ट्रक्चर को हम T4, जो इस तरह से whatever shape you want to see with the hexagonal head और नीचे मॉस्किटो की तरह की वो चीजें हैं, ये इसकी हैं. एग्जाम में आपके इस थर्ड ईयर में फाउंडेशन में यू जस्ट सपोज टू नो द डेफिनेशन. इट्स स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पिक्चर देखिए, अगर कहीं लगी हुई है तो आप पहचान सकते हो कि ये बैक्टीरियोफाज है और उसकी कॉम्पोजिशन. यू जस्ट हैव टू लर्न बाय हार्ट. सी दिस इज अगेन. अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर जो डीएनए है वो सेंटर में है और नीचे से बेस प्लेट से वो बाहर आएगा. ठीक है. अब हमारी जो बैक्टीरियोफाज के थ्रू ट्रांसफर होती है उसको हम टू टाइप्स कह देते हैं. एक लाइटिक और विरुलेंट और दूसरी है लाइसोजेनिक और टेम्परेरी. अली रजा, नाउ दिस इज अ प्रोसेस. ये पूरा आप इसको ध्यान से समझें और करें. वी आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द टाइम टेबल से है, तो वी विल कंटिन्यू. तो हम इसको जो है लेक्चर में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ और ये पोर्शन जो सा है आपको डिटेल में पता चल जाएगा.